So now in this lecture, we will study about the chiral molecule nature. So nature is full of chiral compounds, and therefore we can say the nature those compounds form exist in nature, such as proteins, carbohydrates, DNAs, and many compounds. They contain the chiral center, or the one chiral center or more than one chiral center. The one example is here amino acids, that is uh, glycine. Sorry, except glycine, all amino acids they have chiral centers. Okay, and therefore they can exist in the form of vinyl sugars. So if you consider about the synthesis of amino acids in the lab, so we will find that when we are using a chiral compound, aldehyde, and following these steps, you will get amino acids which is a chiral in nature, but it is a racemic. Why? Because our starting material is not chiral. If it is chiral, you will get pure enantiomer, one or two. And when it is achiral, you will get one plus two, means both. Okay. So this is the most important part of RS nomenclature of chiral compound. There are few important rules. Number one is what? Whenever we have a कंपाउंड, जब हमारे पास कंपाउंड है और कायरल कार्बन है उसमें, उस कार्बन को चार अलग अलग ग्रुप सबको देखना है, और जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उस ग्रुप को नंबर वन प्रायोरिटी देना है। जैसा कि एग्जांपल आपके सामने एलेनिन है। एलेनिन में अगर आप देखते हो तो इसमें NH2 का नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर वो सबसे ज्यादा है, 7 है, इसका 6 है, इस कार्बन का 6 है, इसका 1 है। सो देयरफॉर NH2 को नंबर 1 आएगा, इसको नंबर 2 आएगा, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4 आएगा, राइट। ये देने के बाद में नंबर 2 जो है, रूल ये कहता है कि आपको इसको मॉलिक्यूल को इस तरह घुमाना है, रोटेट करना है कि जो फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी है या उसको बोलते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी, वो कहाँ जाना चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आपको इस तरह उसको रोटेट करना है। तो हमने कहा कि आप 180 का एंगल दीजिए। 180 के एंगल में मिथाइल इधर आएगा और ये CH इधर जाएगा, H पीछे जाएगा, NH2 आगे आएगा, एंड यू कैन गेट लाइक दिस। आप उसको ऐसे ही घुमा सकते हो, और दिस बाय होल्डिंग दिस बॉन्ड इसके भी इस पर भी घुमा सकते हो, नो इशू, नो प्रॉब्लम। ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, ये आपने घुमा दिया और आपको इस तरह कंपाउंड अपीयर हो गया आपके सामने। तो हमने देखा है कि ये एस आएगा, यू सी इफ यू रोटेट दिस। आप अगर आपको जाना है मेंटली, यू गो थ्रू मूव 1 2 3 4, 1 2 3, डोंट काउंट 4, सो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस एस, सो दिस एस। अगर ये क्लॉकवाइज होता, अगर ये क्लॉकवाइज होता, इफ इट इज क्लॉकवाइज मैनर असाइन आर, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज मींस असाइन एस। सो व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल, दिस एस। हमारा मॉलिक्यूल जो है, इफ यू मूव फ्रॉम this NH2 to COH1, then 2 3, so it is anticlockwise, therefore this compound is S. It is S alanine. Okay, it is S alanine. This third rule is important. If it is clockwise, if your movement is clockwise, it's and it's anticlockwise, you see S alanine. And similarly lactic acid, if we talk about lactic acid, so there are two lactic acid, means enantiomer होंगे। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला, अभी आर है कैसे, आप इसको बोल सकते हो आर कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन। तो नंबर 1 इसको दो गया, नंबर 2 नंबर 3 घुमाओगे इसको, नंबर 4। तो दिस व्हाट एस और आर, आर इट इज आर लैक्टिक एसिड। व्हाई? क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। ओके फाइन। सो we can have a variety of examples and we can assign them the RS nomenclature now. So this is the और एक important point ये है कि how to draw the structure. So always write the maximum carbon skeleton in the plane like this 1 2 3, and remaining groups out of the plane. Okay, not like this. Okay, here what we have done, one carbon out of the plane, this carbon out of the plane. This is not okay. We have not, we should not draw like this structure. So another point is हमने देखा है कि enantiomer can be R or S. One more point is enantiomer can be plus or minus.
एनहांसमेंट प्लस और माइनस भी हो सकते हैं, हमें देखेंगे। ओके, बट हाउ वी कैन डिफाइन देम, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हमको समझना है कि ये हिस्ट्री केमिस्ट्री का पार्ट है। तो जब अगर प्लेन क्लोराइड लाइट को अगर हम पास करते हैं, वो सॉल्यूशन कंटेनिंग बीकर में, अगर वो बीकर में आपका ऐसा एनहांसर है जो आर ओ या एस ओ एनी वन, नो प्रॉब्लम, अगर वो लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं प्लस एनहांसर या उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटेड। ठीक है, Yes. अगर वो उसको पॉजिटिव रोटेशन या क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करता है, मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है कि लाइट को, प्लेन प्लस लाइट को, उसको बोलते हैं माइनस इनहेंसर, या उसको बोलते हैं लियो रोटेटेड, या उसको एल भी बोलते हैं, स्मॉल एल। ओके, तो अब अगर आपका सैंपल है आर, कोई आर लैक्टिक एसिड लिया, और लैक्टिक एसिड आर ने अगर पीपीएल को वो किधर भी घुमा सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं है कि आर रहा तो पॉजिटिव, एस रहा तो नेगेटिव, नॉट नॉट लाइक दैट। ओके, सो बी क्लियर विद दिस। ओके, याद रखिए। तो आर प्लस भी हो सकता है, आर माइनस भी हो सकता है। समझो अगर आपने आर लैक्टिक एसिड लिया, तो अगर वो पीपीएल को घुमाता है क्लॉकवाइज तो आर प्लस लैक्टिक एसिड, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो आर माइनस लैक्टिक एसिड। आर ये प्लस वाला और लैक्टिक एसिड। ये देखिए एक्सपेरिमेंट है जो कि पीपीएल की बात हो रही है, ये पी प्लेन लाइट है, जीरो एंगल रोटेशन, ये स्टेट है, सोडियम लैम्प से जनरेट होता है वो, और ये सॉल्यूशन है आपका। जब आप ये पास कर रहे हैं लाइट, डिटेक्टर डिटेक्ट किया, और ये किधर टर्न हुआ, क्लॉकवाइज टर्न हुआ, राइट, तो पॉजिटिव रोटेशन हुआ, right? अगर ये जो एरो है इधर टर्न होता है ऐसा, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो सिंपल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन एनहांसर देखो, हमने देखा है आर एस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, डी और एल भी हो सकते हैं, कैपिटल डी करते हैं तब, लेकिन ये शुगर्स और कुछ शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स को ही लिमिटेड है। इसका यूज एप्लीकेशन जो है ज्यादा वेल नोन नहीं है। ओके, सो देयरफॉर इसको ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि अगर आर एस तो कॉमन है, आर एस शुगर, तो अगर आर रहा तो आर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सिमिलरली एस प्लस भी हो सकता है, माइनस, तो उसी तरह आर डी एल दोनों भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और कभी भी याद रखिए कि आर, अगर आर एनहांसर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वो तो आपको एक्सपेरिमेंट के बाद ही मालूम होगा, जब आप पोलैरिमीटर यूज करके रोटेशन मालूम करोगे। ठीक है, फाइन। अभी देखिए आपके सामने दो स्ट्रक्चर है, एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा है लैक्टिक एसिड। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड मींस प्लस हो सकता है, डी के साथ प्लस भी आ सकता है, डी के साथ माइनस भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्यों है, इसने रोटेट किया क्लॉकवाइज, जब आपने इसका सैंपल लिया और इससे सोडियम लैम्प से रेडिएशन पास की, तो उसने क्लॉकवाइज रोटेशन बताया पीपीएल का, देयरफॉर ये प्लस हुआ। और ये लैक्टिक एसिड के सॉल्यूशन में उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, देयरफॉर इट इज अ माइनस। अब डी कहां से आया, डी का मीनिंग ये है, ये जो एच है, ये एच अबव द प्लेन है, नियर द ऑब्जर्वर ऑन दिस कार्बन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द डी। अगर ये बिलो द प्लेन होता, डैश से बताते, तो ये एल होता, राइट। So these are the important points. Now, the another concept is what about diastereomers. Diastereomers भी ये एक बहुत important topic है, इसको समझने के लिए। What is diastereomers? तो simple definition ये है कि they are stereoisomers. Diastereomers are stereoisomers that are not mirror images of one another. You remember the point. Stereoisomers, हम बोल सकते हैं कि diastereomers are the stereoisomers which are not mirror images of one another. लेकिन ये भी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो हम उसको और सिंपलीफाई करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में। ओके, अभी भी समझ में नहीं आया है क्लियर कट व्हाट इज डायस्ट्रीमर। डेफिनेशन तो यही है उसकी कि व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एनहांसर क्या है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना इसकी, वो डिफर होती है, अलग अलग होती है, जबकि एनहांसर का वैसे नहीं होता, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है,
अब इसकी और सिंपल डेफिनेशन देखेंगे हम। देखिए ये डायस्ट्रियोमर है, इसमें तो कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, लेकिन इनैंशियोमर के लिए कायरल सेंटर कंपल्सरी है। देखो आप क्या ये मिरर इमेजेस है नो, अगर यहाँ से मिरर पास करते हो आप, ये ट्रांस कंपाउंड है, ये सिस कंपाउंड है, ये क्या, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। एक है फ्यूमेरिक एसिड, दूसरा इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड, राइट। These are the example of diastereomer, okay, but they are in fact they are geometrical isomers, cis-trans, okay। अब ये एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं डायस्टेरोमर किसे बोलते हैं। सी है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसको बोलते हैं, और इसके ये इस कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये पहले कार्बन पे अल्कोहल है, इसको बोलते हैं, नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4, 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन नॉन। लेकिन ये OH और ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कैसा है, सेम साइड बोल्ड लाइन है, तो ये सिस हुआ, और यहाँ पे ये अपोजिट है, ये ट्रांस हुआ, ठीक है। यस, ये सिस ट्रांस आइसोमर्स इसमें भी है, but this is again diastereomers. This is what diastereomer, this is geometrical isomers, these are not geometrical but these are diastereomers which are stereoisomers. See, okay, one minute, hang on, हाँ right, see, अभी देखिए ये दोनों कंपाउंड क्या सेम है, दे आर नॉट सेम, क्यों, क्योंकि एक सिस है एक ट्रांस है, तो क्या हुआ, इसका मेल्टिंग पॉइंट 82 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। सिमिलरली ये जो H है, ये ग्रीन H, इसमें इसका प्रोटॉन की वैल्यू 4.02 है, इसमें उसकी वैल्यू 3.50, इसमें कम है, क्यों, व्हाई, द रीजन इज वेरी सिंपल। दो जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, ये OH, ये OH का इसमें ज्यादा क्यों, व्हाई इट इज हायर, बिकॉज दिस OH कैन फॉर्म, इन दिस OH कैन फॉर्म hydrogen bonding, and therefore whenever the hydrogen forming the hydrogen bonding, that hydrogen shifted at a higher del value, okay, it's NMR concept, NMR concept है वो next year next end में आप पढ़ोगे NMR concept। So the physical and chemical properties of enantiomer are identical, but for diastereomers they are not, they are different, okay, fine। So now one more idea about diastereomer, क्या कायरल होते हैं या अकायरल होते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, डायस्ट्रीमर दोनों भी हो सकते हैं। अभी हमने देखा एग्जांपल कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्ट्रीमर्स है, और हमने साइक्लोहेक्सेनॉल के एग्जांपल लिए, वो भी डायस्ट्रीमर। तो डायस्ट्रीमर के बारे में देख लीजिए कि अगर वो अकायरल है तो दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके, अगर वो अकायरल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर कायरल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एग्जांपल देखिए, ये दोनों डायस्ट्रोमर है, यस, ऑफ ईच अदर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस, इसमें है, यस, इसमें भी है, दोनों में भी है, कौन सी है, पेज ऑफ प्लेन। अगर ये मॉलिक्यूल को आप रखते हो पेज पर, तो इसको कट करते हो तो ये इक्वली इक्वली कट हो जाएगा, आधा आधा, दिस इज कॉल्ड एज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह वर्टिकल, तो इसलिए, लेकिन वो दोनों भी क्या है, दे आर डायस्ट्रोमर। एग्जांपल देखिए, इस दोनों मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर इसको बीच में से कट करोगे across this carbon and here also, you will get what, the two equal parts, so therefore ये जो एग्जांपल है इसमें दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट स्टिल दे आर डायस्ट्रीमर्स। इनैनिशियोमर में वैसा नहीं होता है, इनैनिशियोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी एब्सेंट, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कायरल पेयर, ये कायरल पेयर है डायस्ट्रीमर का, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं, इट डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप इसको किधर से भी इक्वल पार्ट में कट नहीं कर सकते हो, therefore diastereomers can have a chiral centers, they can have a chiral centers, so these are the examples of what
डायस्ट्रीमर्स, फाइन, ओके। अगर कंपाउंड कायरल है, इट कैन एग्जिस्ट इनटू टू एनांशियोमर, ओके, फाइन। सो अगर कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो एनांशियोमर रहेगा, अगर कायरल कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो वो डायस्ट्रीमर रहता है, याद रखिए। सो ये समझने के लिए दीज आर द एग्जांपल्स। ये और ये क्या है, दे आर डायस्ट्रीमर ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट एनांशियोमर, लेकिन इसका एनांशियोमर क्या है, ये है, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, इसका एनांशियोमर क्या है, ये है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, a pair of diastereomer, ये pair of diastereomer have a 4 enantiomer, a pair of diastereomer have a 4 enantiomer, okay, a pair of diastereomer have a 4 enantiomer, ये epoxide के हमने एग्जांपल लिया है, epoxide cis and trans epoxide। Then the next part will be about the what the absolute and relative of stereochemistry, we will discuss in the